Hello student. Last time we have learned, we have discussed about the icebreaker of this lesson 1.6 into the wild. And then now let's start to the lesson into the wild. Before that, let's have some information about the writer Kiran Purandare. Kiran Purandare sir, he has completed his BCom and then he went to Scotland for the further studies of environmental studies. He has received Sahitya Puraskar, then Bhai Madhav Bagal Award of Pune, then Best Literature Award from for Sakha Nagzira. Sakha Nagzira is a book which he has written, and this story is also taken from the same book. He spent his 400 days inside Nagzira and nearby forest areas. He is a wildlife expert, a bird watcher, a writer, and an honorary wildlife wardener in Maharashtra. He is the founder of Nisargaved organization. He also founded Kika's Bird Club. Bird Club. He has founded, and he founded this club in order to spread bird farming and बर्ड्स का जो संवर्धन करने के लिए इन्होंने ये क्लब फाउंड किया था which is very popular among school going children afterward. In this lesson, in this prose, he has given two parts. First part named Lost in the Jungle. In this part, he has um, given very amazing experience of his life, how he was lost in jungle of Umbarzara and his experience of complete solitary traveling in the jungle. Then how he gives the detailed instruction, detailed information, describes the detailed thing that how he found his way towards Pidzari. Pidzari is a village, and how he searched his way towards Pidzari is given in detail here. The experience is really very exciting, thrilling, and very. We when we read this, we feel really thrilled while reading that. He gives his own experience that shouting for help would literally means crying in a wilderness. Means जब वो वहाँ पे खो गए थे तब वहाँ का जो एक्सपीरियंस उन्होंने मेंशन किया है वो बहुत ही थ्रिलिंग है और उन्होंने कहा है कि इट वाज लाइक अ क्राइंग इन अ वाइल्डरनेस बिकॉज जंगल में खुद के सेफ्टी के लिए या किसी की मदद के लिए पुकारना ये बिल्कुल निरुपयोगी चीज है ऐसा एक्सपीरियंस उन्होंने वहाँ पे फील किया है देन we will discuss about the second part afterward. First of all, let's see the first part, uh, Lost in the Jungle. Page number 56. Okay. Today we will have detailed description, or we can say line to line description of the lesson. Part first. First line, first paragraph. The 8.5 hour long day inside the hide was as fruitful as the jamba tree standing tall on the edge of Umbarzara. In that Umbarzara jungle, he has situated one hiding place for himself. Hide inside the hide means a place built to look like its surrounding. उन्होंने वहाँ पे एक ऐसी प्लेस
खुद के लिए बनाई थी, एक ऐसा हाइड बनाया था जो बिल्कुल वहाँ के सराउंडिंग को मैच कर रहा था। हाइड मीन्स अ प्लेस बिल्ट टू लुक लाइक इट्स सराउंडिंग। ऐसी जगह उन्होंने बनाई थी वहाँ पे जंगल में, जाम्बा ट्री के वहाँ ऊपर, कि जो बिल्कुल उस ट्री से मैच हो रहा था। सब कुछ जो भी उन्होंने वहाँ पे बनाया था वो उससे मैच हो रहा था। मतलब बाहर से कोई देखे तो वहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग का रहने का ठिकाना है या फिर वहां पे कोई हो सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकेगा। इसलिए उसे हाइड कहा है। नेचुरल जो चीजें होती है, पेड़ पौधे, उनके पत्ते, उन सब चीजों से उन्होंने वो प्लेस अच्छी तरह से कवर कर दिया था। और वहां पे वो हर रोज 8-10 घंटे वहां पे रहकर पूरा रिसर्च करते थे, पूरा ऑब्जर्वेशन जंगल का करते थे। इसलिए वहां पे कहा है The 8.5 hour long day inside the hide was as fruitful as the jamba tree standing tall on the edge of उम्बरझरा। उम्बरझरा के उस जंगल में जिस तरह से वो जाम्बा ट्री, जामुन का पेड़ अच्छी तरह से स्टैंड था, उसी तरह से उनका जो हाइड वहां पे उन्होंने जो बनाया हुआ था, वो बनाना और वहां पे काम करना, वहां पे चढ़ के वहां पे बैठ के, वो बहुत ही फ्रूटफुल उनको फील हो रहा था। Before wrapping up my day as this natural water hole, I took entries of the avifauna in my field note. He is telling that before wrapping up my day, before wrapping up means उनका जो दिनचर्या थी वो, उस दिन का जो काम था वो खत्म हो गया था, इवनिंग टाइम हुआ था, इसलिए वो अपना वाइंड अप कर रहे थे, वहां से वो निकलने वाले थे। एज दिस नेचुरल वाटर होल, जो भी वो निसर्ग के सानिध्य में वहां पे रिसर्च कर रहे थे, वहां से उन्होंने अपना रैपिंग अप किया, वाइंड अप किया। I took entries of the avifauna in my field notes. Avifauna का यहाँ पे मीनिंग दिया है birds of a particular region, habitat और geological period। उन्होंने जो भी एंट्रीज ली थी मतलब उन्होंने कुछ नोट डाउन करके रखा था, कुछ उन्होंने रिसर्च जो भी किया था वो उन्होंने लिखा हुआ था, उसके ऊपर कुछ उन्होंने नोटिंग किया था, कुछ फोटोग्राफ्स निकाले होंगे, बहुत सारा। It took entries of the avifauna in my field notes। जो भी उनका नोट्स थे उन्होंने वो निकाले थे और लिखे थे, वहाँ पे उन्होंने एंट्रीज किया था, और जो भी वहाँ की बर्ड्स थे, हैबिटेंट्स थे, उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्हें उन्होंने कलेक्ट की थी। सिंस आई वॉज अलोन I rushed to Pizzeri village where I was stationed. He was alone. He was working in that Umbarzara forest for almost 8 to 10 hours daily, and as he was alone now, he has decided to rush to Pizzari village. Pizzari was the village where he was resting at night, and that's why station, this word is used here. Station मतलब वहाँ पे वो रात के लिए स्टे करते थे, मुक्काम करते थे वहाँ पे। I camouflages the hide. Camouflage means कवर करना। जो भी हाइड उन्होंने बनाई थी उसको उन्होंने अच्छे से कवर कर दिया। वहां से बाहर निकलने के बाद वो हाइड उन्होंने अच्छे से कवर कर दिया। यहाँ पे मीनिंग दिया है camouflage का, disguised by covering it to make it blend in with a surrounding। डिस्गाइज करना मतलब उसके ऊपर कुछ अलग कवरिंग कोटिंग करना, या फिर अपना कॉस्ट्यूम जैसे चेंज करते हैं, कोई वेशांतर करते हैं, उसके लिए डिस्गाइज वर्ड यूज किया जाता है। डिस्गाइज बाय कवरिंग इट टू मेक इट ब्लेंड विथ द सराउंडिंग। जो भी सराउंडिंग है उसके साथ उसका ब्लेंडिंग होने के लिए उन्होंने उसको कवरिंग कर दिया। Took my essential, came out of the hide and stretched out to my heart's content. Continuously he was working inside that hide, and that's why he was tired. So he take his belongings, whatever essential things he had, he took those things and he came out
एंड ही स्ट्रेच्ड हिज बॉडी, उन्होंने अच्छे से शरीर के सारे जो लिम्स थे, अवयव थे, उनको जितना मन चाहा उतना उन्होंने खींचा, मतलब क्या बोलते हैं हम उसे, मराठी में आळस देने बोलते हैं और हिंदी में अंगड़ाई लेना बोलते हैं। तो उनकी बॉडी को रिलैक्सेशन फील हो इसलिए उन्होंने अपने लिम्स स्ट्रेच किए। I lifted my camera bag and took the familiar trail to पिट्सरी। जो भी बैग था कैमरे का वो उन्होंने उठाया और पिट्सरी का जो फैमिलियर ट्रेल था, जो डेली उनका रास्ता था पिट्सरी विलेज के लिए जाने का, वहां पे वो चल दिए। Negotiating the webbed leaves of Teka wood and moha tree, trying to make minimum sound. I was trading continuously among the wood. He was trading continuously. He was walking continuously into the wood, and that's why he's telling that whatever noise, whatever waved leaves, मतलब जो भी पत्तों की जो आवाज हो रही थी, पत्तों की जो डिस्टरबेंस हो रहा था, उसकी वजह से जो भी साउंड क्रिएट हो रहा था, तो वो सब कम से कम हो, इसलिए वो बहुत सावधानी से वहां से चल रहे थे, इसलिए निगोशिएटिंग वर्ड यूज किया है। टेक टेक वुड मीन्स साग के ट्रीज एंड मोह के ट्रीज वहां पे थे और उनमें से चलते हुए मिनिमम साउंड क्रिएट करने की वो पूरी कोशिश कर रहे थे। वॉकिंग अलोन in a jungle needs more alertness that walking with a companion। किसी कंपेनियन के साथ वॉकिंग करने से ज्यादा जब हम अकेले होते हैं जंगल में, तब बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है, बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है, बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। जस्ट अ मिनट, यस। I was alone here like a fox. Now he tells that just like a fox wanders freely and search something in a wild jungle, and just like he roam here and there alone, he is comparing himself to the free fox in that jungle. Following the trail silently, watching with wide open eyes, my ears were gasping a variety of sound just when a familiar sound stunned me. When he was walking at that time, his ears were very alert. वो कानों से कुछ जो भी आवाज आ रही थी वो बहुत ही कॉन्शियसली सुन रहे थे, इधर उधर देख भी रहे थे और कानों से छोटी से छोटी आवाज वो सुन रहे थे। गास्पिंग अ वॉइस ऑफ साउंड, मतलब जो भी आवाज आ रही थी वो कैच कर रहे थे उनके ईयर्स, और वो कैसा साउंड था, फैमिलियर साउंड था। स्टर्न मी, मतलब उस साउंड से वो थोड़े रुक गए या फिर आश्चर्यचकित हो गए। स्टर्न होना मतलब मराठी में थबकणे असा अर्थ असतो। इन हिंदी वी कैन से एस्टोनिश, इन हिंदी रुकना, थोड़ा आश्चर्यचकित होना। ओके, then he was astonished, he was stopped for a while due to that sound. And what, how was the sound? Khack khack, khako khack, that was the sound. It was a langur alarm call. The leader of the gang of langur was sitting on the tall tree making alarm calls out of fear for life. It was the sound created by langur. Langur means वानर, monkeys का एक प्रकार होता है। तो वो ये साउंड क्रिएट कर रहे थे, वो एक साउंड नॉइज क्रिएट कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फियरफुल थे, और जैसे वो किसी को चेतावनी दे रहे, उनके उनके जो दूसरे कंपेनियन और उनके जो उनकी जो पार्टी होती है, उनकी जो सारे लंगूरों की टीम होती है, तो दूसरों को वो अलर्ट करने के लिए वो ऐसा फियरफुल साउंड निकाल रहे थे।
Rest of the langur brigade continued raising the alarm call, और दूसरे जो लंगूर्स थे वो भी उसकी तरह से ऐसा ही साउंड क्रिएट कर रहे थे. The network of alarm call was expanding its range as the petrified langurs spreaded to the trees near and far and secured their places on treetop. जो भी नेटवर्क था, ये अलार्म कॉल का जो आवाज हो रहा था वो कैसा हुआ लग रहा था? पेट्रिफाइड. पेट्रिफाइड मीन्स द मीनिंग इज ऑलरेडी गिवन हियर. जस्ट अ मिनट, we will change the page first of all. Yeah, see, petrified, this word is given here. Very frightened, the sound was very frightening. Langurs were making that sound and that कॉल वॉज एक्सपांडिंग. जो भी आवाज थी वो बढ़ती जा रही थी, ज्यादा से ज्यादा लंगूर उसको रिप्लाई दे रहे थे और वो जो भी साउंड क्रिएट हो रहा था वो बहुत ही पेट्रिफाइड था. और कहा से नियर बाय के सारे ट्रीज, आसपास के सारे सारे पेड़ों से वैसी आवाजें आ रही थी. All this upheaval means उल्था पालत, जो भी ये अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे, जो भी ये हलचल हो रही थी, जो भी ये बंदरों की जो रेस्टलेसनेस हो रही थी, it was created by only one animal presence, a leopard. वहां पे एक leopard था. leopard means बिबट्या. वहां पे एक leopard था, जैसे बिल्ला हम उसे कह सकते हैं. तो उसके प्रेजेंस की वजह से ये सारे लंगूर इस तरह की आवाजें निकाल रहे थे. मेनी एनिमल्स मेक अलार्म कॉल्स व्हेन दे सी अ प्रेडेटर. प्रेडेटर मीन्स भक्षक. जो भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो ऐसे प्रेडेटर्स को देख के इस तरह की आवाजें निकालते रहते हैं. प्रेडेटर का मीनिंग यहाँ पे दिया है. प्रेडेटर मीन्स प्रेज ऑन अदर एनिमल्स, दूसरे प्राणियों का, दूसरे एनिमल्स का शिकार करना. Many animals make alarm calls when they see a predator, tiger or leopard nearby. बहुत सारे एनिमल्स इस तरह की आवाजें निकालते हैं जब वो इस तरह के किसी predator को देखते हैं. The langur is most reliable when it comes to finding clues about the presence of the apex predator in the jungle. लंगूर ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट एनिमल है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन देने वाला एनिमल है. रिलायबल का मीनिंग यहाँ पे हम लेंगे कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन देने वाला एनिमल है, कि जो इस तरह के प्रेडेटर्स होते हैं. एपेक्स, एपेक्स मीन टॉप मोस्ट प्रेडेटर्स जो है जंगल के, टाइगर है, लेपर्ड है, उनके बारे में परफेक्ट इंफॉर्मेशन देने वाला एनिमल है लंगूर. The mighty elusive leopard of Umbazara was out of its lair. Lair means den, secret place, उसकी जो गुफा होती है. जो mighty elusive leopard है, mighty means बहुत ही strong, elusive means बहुत ही prompt, बहुत ही चालाक animal leopard, वो अपने den से, अपने गुफा से बाहर निकला हुआ था. इसलिए वो बाहर निकला हुआ था. He was on the prowl. वो शिकार करने के लिए, in search of predator, वो बाहर निकला हुआ था. The strangely moving figure in spotted gold black cloak was spied by these langur. लंगूरों ने जो भी लेपर्ड देखा था वो कैसा था? गोल्ड ब्लैक क्लॉक was spied. हाँ, कैसा था वो? गोल्ड ब्लैक कलर का था, काला बिल्ला था वो, और जिसके ऊपर थोड़े बहुत स्पॉट्स वगैरह होंगे. उसकी वो आकृति उन्होंने देखी थी. स्पाइड, स्पाइड मीन्स उन्होंने देखा हुआ था. हम उसे क्या कह सकते हैं? स्पाई करना मतलब हेरगिरी करना.
नजर रखना किसी के ऊपर। तो लंगूरों ने वो अच्छे से दूर से ही उसको स्पॉट आउट किया था, उसके ऊपर नजर रखी हुई थी इस ब्लैक कैट के ऊपर। इवन द स्मॉल वंस फ्रॉम द लेजियन of langur were giving alarm call. Legion means a great number of people or things. जो समूह कहा जाता है, लेजेंड्स का मीनिंग यहाँ पे समूह है, तो उनकी टीम। तो लंगूरों की जो टीम थी वो उसमें से जो भी छोटे छोटे लंगूर थे उनका भी आवाज वहां पे अलार्म कॉल आ रहा था, और उनका साउंड कैसा था, चैक चैक ऐसा उनका साउंड था। जो बड़े लंगूर थे उनका खैक खैक ऐसा साउंड था, और जो छोटे लंगूर है उनका चैक चैक साउंड वहां पे आ रहा था। आई स्टेड पुट, gagged the leader langurs target site and scanned the area visually. I stayed put. वहां पे वो रुक गए। gagged the leader langur, उन्होंने सर्च किया, उन्होंने देखा, उन्होंने ढूंढा। गैट मीन्स ढूंढना या फिर मिलना। उनको मिल गया, जो लीडर लंगूर था उनको वो दिख गया। एंड स्कैन द एरिया विजुअली, और जो भी एरिया था वो पूरा उन्होंने स्कैन किया। स्कैन किया मतलब इधर उधर उन्होंने नजर डाली। टुक सम स्टेप्स, और धीरे धीरे वो आगे कुछ स्टेप्स लेने लगे। स्टॉप्ड अगेन, a fresh cat was lying before me on the trail. Trail means way, मार्ग, जो भी रास्ता, जिस रास्ते से वो जा रहे थे। तो वहां पे उनको एक फ्रेश स्कैट नजर आया। स्कैट मीन्स शीट, एनिमल का जो शीट होता है, उनकी विष्ठा होती है, तो वहां पे उनको वो नजर आया रास्ते में ही। द ब्लश पर्पल फ्लाइज वेर हॉवरिंग ओवर इट, और वो उस चैट के ऊपर कुछ फ्लाइज हॉवरिंग कर रहे थे, घूम रहे थे, भिनभिना रहे थे, मक्खियां उसके ऊपर भिनभिना रही थी। आई वॉज श्योर दैट द लियोपार्ड वॉज समवेयर नियर, और उन्होंने वो श्योर हो गए कि नजदीक ही कहीं तो उनको लियोपार्ड नजर नजर नहीं आया था, कहीं तो नियर लियोपार्ड उनके आसपास ही है, ऐसे उनको रियलाइज हुआ। ओके, द डिस्टेंस अलार्म call of four horn antelope was adding to the chaos. पहले से ही chaos था वहां पे। chaos मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा नॉइज था वहां पे। वहां पे किस चीज का नॉइज था कि जो लंगूर है वो बहुत ही ज्यादा नॉइज कर रहे थे, और उसके साथ में ही एंटलोप का भी नॉइज वहां पे ऐड हो गया। एंटलोप ये डियर लाइक एनिमल है, जिनके चार सींग होते हैं, मतलब नुकीले सींग होते हैं, जरा अलग शेप के। तो वो एंटेलोप भी वहां पे थे, जिसको मराठी में सांबर कहा जाता है। तो उसका आवाज भी वहां पे ऐड होने लगा, मतलब वो एनिमल्स भी कुछ इस तरह के अलार्मिंग कॉल्स देने लग गए। ओके, I barely walked around 15 meters and stopped. 15 मीटर तक वो मैक्सिमम चले होंगे, और वहां पे वो रुक गए। I had apparently entered in the sanctorum of a miracle called leopard. Sanctum sanctorum. Sanctum sanctorum means एक सीक्रेट प्लेस, और वी कैन से प्राइवेट प्लेस। यहाँ पे मीनिंग दिया है, द होली ऑफ होलीज, अ प्लेस रीजन वेयर फ्यू आर अलाउड एज द सीक्रेट इम्पोर्टेंट वर्क इज डन। किसी खास एनिमल्स के लिए कुछ एक सीक्रेट प्लेस है, और उस सीक्रेट प्लेस में कि जो उस लेपर्ड का था, उस लेपर्ड के उस सीक्रेट प्लेस में वो एंटर हो चुके थे, और उसको आसपास ही कहीं पे लियोपार्ड होने का एहसास होने लगा, क्योंकि ये सारे एनिमल्स नॉइज कर रहे थे। बट द बिग कैट वॉज नॉट विजिबल, उनको वो बिग कैट, लियोपार्ड को बिग कैट कहा है, वो उनको दिखाई नहीं दी। इट इज एन एल्यूसिव एनिमल। हाउ इज
leopard, elusive animal means very prompt animal. It is really very quickly moving, बहुत ही चालाक किस्म का ये एनिमल होता है. चालाक नहीं कह सकते हम, बहुत ही प्रॉम्प्ट, बहुत ही चपल एनिमल होता है. But the big cat was not visible. It is an elusive animal. The surrounding were reminding me that I was all alone. Time and again. Time and again is the phrase here. It means again and again, पुनः पुनः, बार बार, उसका मीनिंग होता है. And the surrounding were reminding me, जो भी सराउंडिंग थी, आसपास का जो भी माहौल था, वो उनको बार बार याद दिला रहा था. क्या याद दिला रहा था? दैट ही वॉज ऑल अलोन, वो वहां पे अकेले है. ऐसे उनको बार बार वहां का जो सराउंडिंग है, बार बार वहां का जो नॉइज है, इसकी वजह से उनको ऐसा रियलाइज हो रहा था. As I moved forward on the trail to Pizzeri, the fading alarm call were still heard in the background. जैसे वो पिट्सरी के लिए आगे आगे निकलने लगे, फिर भी उनको पीछे से वो फैडिंग अलार्म कॉल जो भी था वो सुनाई दे रहा था. या फिर फैडिंग अलार्म कॉल कहा है. फैडिंग मीन्स अभी बहुत ही अनक्लियर ऐसा आवाज आ रहा था, मतलब वो बहुत आगे निकल गए और जो भी लंगूरों की जो आवाज थी वो पीछे छूट गई थी, इसलिए फैडिंग अलार्म कॉल यहाँ पे कहा है. I could tell instinctively that the leopard had moved away. और उनको अंदर से ऐसा फील हो रहा था. Instinctively means without conscious thought, बाय नेचुरल रिस्पॉन्स. अंदर से उनको ऐसे मन से आवाज आ रही थी, मन से उनको फील हो रहा था कि जो लेपर्ड है वहां से वो मूव्ड अवे हो गया था, वहां से वो निकल गया था, इसलिए वो वहां पे सेफ फील करने लगे. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. मीनवाइल, Meanwhile, I saw a man standing at a distance with a stick in his hand. As I approached, he appeared spoken due to alarm calls of the langur. जैसे वो आगे निकले, उनको वहां पे एक इंसान दिखाई दिया, और वो कैसा था? इट वॉज अ स्पोकन. स्पोकन मीन्स बहुत ही फ्राइटन था. यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं साइड में कि स्पोकन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो सर्च करने के लिए बोला है. फ्राइटन, हैप्पी, एंग्री. द पर्सन वॉज फ्राइटन. द मीनिंग ऑफ स्पोकन इज फ्राइटन. द पर्सन वॉज स्पोकन एंड ही वॉज अप्रोच, वो उनसे मिले. वी ग्रीटेड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को ग्रीटिंग किया, हालचाल पूछा, या फिर एक दूसरे को वो मिले, हाय हेलो किया होगा. ही वॉज राजू इस्कापे फ्रॉम पिट्जरी. उसका नाम भी इनको पता था, क्योंकि हमेशा पिट्जरी के विलेज में ये रात को स्टे करते थे. जितने भी दिन वहां पे वो उस जंगल में उन्होंने रिसर्च किया, उम्बरजरा के जंगल में, उतने रातें उन्होंने पिट्जरी विलेज में स्पेंड की थी, और इसलिए उनको ये राजू इस्कापे पता था, उसको उनको मिला. He had come to collect logs but retreated due to the leopard's movement. वो जंगल में कुछ लॉग्स, कुछ लकड़ियां कलेक्ट करने के लिए आया था, लेकिन ये जो आवाजें आ रही थी एनिमल्स अलार्म की, इसकी वजह से वो रिट्रीट हो गया था. रिट्रीट मीन्स वो रिटर्न हो गया था, पीछे वो हट गया था. राजू वॉज अमेज्ड एट माई रेगुलर सॉलिटरी विजिट्स टू उम्बरझरा. राजू को बहुत ही आश्चर्य होता था कि मैं वहां पे हमेशा सॉलिटरी विजिट्स देता था. सॉलिटरी मीन्स अकेला, अकेले ही जब मैं वहां पे जाता था, ये सब देख के वो राजू बहुत ही अमेज्ड फील करता था. Solitary visit to Umbazara, the heaven for tiger, leopard, and sloth bear. How was Umbazara? Umbazara was the heaven. Heaven means place. वो तो एक स्वर्ग था. किन एनिमल्स के लिए वो उम्बरजरा एक स्वर्ग था? टाइगर्स के लिए, लेपर्ड्स के लिए, एंड स्लॉथ बियर. बियर
सुस्त बियर जो होते हैं उनके लिए ये एक हेवन था, उनकी वो सीक्रेट प्लेस थी वहां पे। वी स्टॉप्ड अंडर अ कुसुम ट्री टू टेक अ ब्रेक, थोड़ा ब्रेक लेने के लिए वो कुसुम ट्री के नीचे रुके। We both felt a bit relaxed, दोनों को थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था। Now we were four eyes, four hands with a stick. Then we both resumed our walking tour. फिर से उन्होंने अपना जो टूर था वो स्टार्ट किया अगेन स्टार्ट किया। और वो कैसे थे, दो लोग थे इसलिए फोर आईज फोर हैंड्स विथ स्टिक ऐसे वहां पे मेंशन किया है। Okay, next paragraph. There was one tiny track that broke out of the main trail. वहां पे रास्ते से वो जब जाने लगे वहां पे एक छोटा सा टाइनी ट्रैक उनको दिखाई दिया। टाइनी मतलब छोटा सा और ट्रैक मीन्स पथ, रास्ता। ये छोटा सा जंगल में जाने का ये पायवाट मराठी में उसे कहा जाता है। तो पैदल चलने के लिए वो छोटा सा रास्ता उनको दिखाई दिया गया। ठीक है। I will take this route. You go straight, said Raju, and turn right. राजू ने उनसे कहा कि मैं इधर से चला जाता हूँ, मैं इस रास्ते से जाता हूँ, आप सीधा सीधा निकल जाइए। Means the straight way was directly going to Pizzari, but Raju maybe had some other work. He must have decided to collect some woods, logs, and that's why he just chooses to go from that tiny track, and he advised Kiran sir to go straight from that way. I kept walking straight until I climbed a familiar hill. एक familiar मतलब रोड्स का ही दिखाई देने वाला छोटा सा हिल लॉक था वहां पे, हिल लॉक, हाँ, familiar hill log. उसके ऊपर वो क्लाइंब हो गए, चढ़ गए। I crossed the cement pillar and stones stacked by Forest Development Corporation to mark the बाउंड्री ऑफ द फॉरेस्ट कंपार्टमेंट। फॉरेस्ट का कंपार्टमेंट का जो बाउंड्री मार्किंग करने के लिए जो भी सीमेंट के पिलर्स या फिर स्टोन की जो अरेंजमेंट थी वहां पे दीवार जैसा बनाया हुआ था, उनको उसको उन्होंने क्रॉस किया। सॉरी, नेक्स्ट पेज। टुक अनदर ट्रेल आफ्टर क्लाइंबिंग डाउन, और दूसरा मार्ग उन्होंने चूज किया वो हिलॉक क्लाइंब डाउन करने के बाद। Walk across a beautiful mawa tree loaded with reddish brown leaves, और वहाँ पे जो महुआ ट्री थे उस महुआ ट्री था ब्यूटीफुल महुआ ट्री जिसके ब्यूटीफुल से ऐसे रेडिश ब्राउन कलर के कुछ पत्ते थे। तो उस एरिया को उस ट्री को उन्होंने क्रॉस किया। द ग्राउंड अंडर द ट्री वॉज क्लीन वेरी वेल, और जो भी ग्राउंड था उस ट्री के नीचे का वो अच्छे से क्लीन किया हुआ था। मे बी किसी एनिमल्स ने बैठने के लिए वहां पे जगह ढूंढी होगी, तो वहां पे उन्होंने बैठने की वजह से वहां पे कुछ पत्ते नहीं थे और जगह थोड़ा क्लीन नजर आया था, जैसे बियर वगैरह एनिमल अपने पैरों से वो जमीन खोद के साफ करके बैठते हैं वहां पे। The thought instantly flashed in my mind. I had lost my way. Next moment, I found another dusty trail. उनके मन में एक अचानक से विचार आया कि मैं अपना रास्ता खो गया हूँ, और उन्होंने झट से दूसरा एक छोटा डस्टी ट्रेल था, पथ था, मार्ग था, वो चूज किया जाने के लिए। Hastily, I took the trail which took me from a narrow gorge to an open field. क्विकली हेस्टिली मतलब बहुत ही क्विकली, जल्दी जल्दी में उन्होंने अगला जॉर्ज चूज किया। जॉर्ज मीन्स अ नैरो गली बिटवीन हिलॉक, दो हिलॉक के बीच में जो भी छोटा सा मार्ग होता है, खिंड कहा जाता है उसे, उन्होंने वो चूज किया और उसमें से वो जाने लगे।
The area was surrounded by hillocks of dry deciduous tropical forest. और dry deciduous tropical forest means गर्मियों में जिन पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं, ऐसे ट्रॉपिकल एरिया था, समशीतोष्ण एरिया था का, वो फॉरेस्ट का एरिया था, वहां से वो जाने लगे. I turned back to spot the sun. उन्होंने पीछे मुड़ के देखा. क्यों देखा? सन को स्पॉट करने के लिए. सन को स्पॉट करने के लिए मतलब सूरज कहाँ है, सनसेट हो रहा था, सूरज कौन सी डायरेक्शन में है, ये स्पॉट आउट करने के लिए उन्होंने क्विकली पीछे मुड़ के देखा. मतलब he was just trying to find out proper direction. सनसेट कहाँ पे है ये देखने की वजह से उनको प्रॉपर डायरेक्शन पता चल गया. Now the geographical waste was set. जो भी उन्होंने सनसेट देखा तो उसकी वजह से उनको वेस्ट दिशा जो थी वो उनके समझ में आ गई कि कौन सी वेस्ट है तो कौन सी ईस्ट होगी, वो उन्होंने डिसाइड की. द डस्की ट्रेल हैड वैनिश्ड. और जो भी रास्ते से वो आ रहे थे, एक छोटा सा पथ या फिर मार्ग उनको दिखाई दे रहा था, वो वैनिश हो गया था. Good heavens, I was lost, completely lost in this jungle. That too at a very dreadful time. और वो उनके लिए एक बहुत ही ड्रेडफुल या फिर हम क्या कर सकते हैं उसे डिफिकल्ट टाइम उनको फील होने लगा. द सन वॉज मेल्टिंग डाउन लाइक अ फ्लिटिंग रनर. फ्लिटिंग मीन्स रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ने वाले रनर की तरह सूरज मेल्ट डाउन हो रहा था, सनसेट हो रहा था. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. Soaked in my own sweat, I felt like shouting to my heart's content. वो बहुत ही ज्यादा स्वेटिंग उनको हुई थी, बहुत ही ज्यादा पसीना आया था, और उनके खुद के मन के सेटिस्फेक्शन के लिए, हर्ट कंटेंट यहाँ पे कहा है सेटिस्फेक्शन के लिए, टू फुलफिल्ड लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए उनको शाउटिंग करने की बहुत इच्छा हो रही थी. बट देयर वॉज नो अदर सोल टू लिसन टू माई साउंड इन दिस वाइल्डरनेस. और वहां पे दूसरे कोई व्यक्ति थी नहीं उनकी आवाज सुनने के लिए. आई हैड टू बैग्स विथ मी, द शबनम बैग हैविंग द कैमरा एंड द अदर वॉज a small colorful handmade bag used in village to carry tiffin. दो बैग का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, किस बैग में क्या था वो हमें समझ में आ गया. दिस टिफिन स्टिल हैड सम स्टफ बट आई डिडंट फील लाइक हैविंग इट. टिफिन में फिर भी उस वक्त थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ था, लेकिन उनको खाने की इच्छा नहीं थी. द ब्लॉसमिंग बॉक्सवुड ट्रीज, द भुप भुप साउंड ऑफ कोकल बर्ड, the song of robin bird, all appeared alien to me. अभी जो भी साउंड उनको वहां पे सुनाई दे रहे थे, वो साउंड कौन से थे? बॉक्सवुड ट्री का ब्लॉसमिंग मतलब पेड़ों की आवाज वहां पे आ रही थी. बॉक्सिंग बॉक्सवुड ट्रीज थे वहां पे. देन भूप भूप ऐसा साउंड आ रहा था कोकॉल बर्ड का. देन रॉबिन बर्ड का सिंगिंग का साउंड आ रहा था. ये सब चीजों की बावजूद उनको एलियन सा महसूस हो रहा था, मतलब वहां पे उनको अकेला सा फील हो रहा था, अनजान सा उनको वहां पे फील हो रहा था. एलियन मीन्स यहाँ पे अकेला फील होना, अनजान सा फील होना, पराया सा उनको यहाँ पे फील हो रहा था. It was more than an hour, and I was still there searching for a suitable tree to climb and get secured. 1 घंटा से ज्यादा हो गया था कि वो वहां पे एक सिक्योर्ड प्लेस ढूंढ रहे थे खुद के लिए, कि जिसके ऊपर वो चढ़ के खुद को सिक्योर्ड कर सके, खुद को महफूज रख सके. टर्न बैक टू द ट्रेल यू लेफ्ट, माई माइंड वॉज टेलिंग मी. उनके मन से आवाज आ रही थी कि टर्न बैक, पीछे जिस ट्रेल से, जिस मार्ग से वो आए थे उसी मार्ग पे फिर से चल देना चाहिए, इनको वैसा फील हो रहा था. बट देयर वर नो साइंस ऑफ द ट्रेल, लेकिन पीछे से कुछ भी मार्ग उनको दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो वहां पे खो गए थे. आई हैड नो अदर वे टू क्लाइम द हिल लॉक बिफोर मी.
उनके सामने जो एक हिलॉक था, एक छोटा सा हिल था, उसके ऊपर चढ़ने के अलावा उनके पास कोई और अम, मार्ग ही नहीं था. There were more hillocks and some more around the one I was standing. वो किसी एक हिलॉक पे खड़े थे, लेकिन आसपास बहुत सारे हिलॉक्स थे. Near by my feet were the dried up dropping of sloth beer. और तभी उनके पैर के पास उनको एक ड्राइंग ड्रॉपिंग दिखाई दी. विष्टा हम जिसे कह सकते हैं, एक शीट वहां पे थी, ड्राइड शीट थी, किसके? स्लॉथ बियर की. मतलब देखो, ये जो ड्रॉपिंग से, ये जो शीट से, उसके ऊपर से भी वो समझ रहे थे. इतना उनका रिसर्च उस जंगल में हो गया था कि ड्रॉपिंग्स किस एनिमल के हैं, ये भी वो समझ रहे थे. तो वो स्लॉथ बियर का ड्रॉपिंग था. द स्लॉथ बियर ऑफ उम्बरजरा मस्ट बी आउट इन ओपन स्निपिंग फॉर फूड. और इवनिंग टाइम था, और उस उम्बरजरा के जो स्लॉथ बियर थे, वो में भी इवनिंग में ही शिकार करने के लिए निकलते होंगे. इसलिए उनको रियलाइज हुआ कि वो मस्ट हो यहाँ पे शिकार करने के लिए वो निकल चुका होगा. आई कॉशन माई सेल्फ. उन्होंने खुद को सावध किया, खुद को अलर्ट किया. थिंकिंग ऑफ अवर्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इवेंचुअली आई मेड अ मूव. और क्विकली, बहुत, जो भी उनके मतलब पूरा अलर्टनेस से उन्होंने वहां पे मूव आउट करने की डिसाइड किया. I made a move. I ran down the hillock that I had climbed up at a frantic speed. Frantic means hurried, excited. जो भी excitement में उन्होंने hillock चढ़े हुए थे, वो climb down किया. The waist was to the right hand side now. जो भी वेस्ट दिशा थी, वो उनके राइट साइड में थी. The evening breeze flew through my wet curly hair. और उनके curly hair जो wet हो गए थे पसीने की वजह से, स्वेटिंग की वजह से, तो वो उसमें से वो ब्रीज उनको फील हो रही थी. My stomach was aching. I kept walking in hope. उनके स्टमक में बहुत ही पेन हो रहे थे, फिर भी वो आगे आगे जा रहे थे. After around 50 steps, I found a bright red soil trail. 50 स्टेप जाने के बाद उनको एक रेड सॉइल के ऊपर एक ट्रेल, मतलब एक पथ, छोटा मार्ग उनको दिखाई दिया. I found my silver lining on this trail. See, silver lining means यहाँ पे होप, पॉजिटिव साइन दिया है. सिल्वर लाइनिंग मीन्स कुछ जंगल में जाते वक्त बहुत सारे लोगों को एक रास्ते पे जो भी स्टोन्स या फिर पेड़ होते हैं, उनके ऊपर अलग अलग निशानियां बनाने की आदतें होती है. तो उसी तरह से इन्होंने कुछ निशानियां बनाई हुई होगी उस रास्ते के ऊपर कि कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए प्रॉपर डायरेक्शन के लिए. तो वो सिल्वर लाइनिंग यहाँ पे है. तो उनको सिल्वर लाइनिंग वहां पे दिखाई दी गई उनके ट्रेड के ऊपर, उस मार्ग के ऊपर. देयर वेयर मार्क्स ऑफ बाइसिकल व्हील ऑन दिस ट्रेल. और उसी मार्ग के ऊपर बाइसिकल के निशान भी थे, बाइसिकल व्हील्स के निशान भी थे. दैट वाज अ बिग कंसोलेशन फॉर मी. और वो उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्टरी थिंग थी. देयर मस्ट बी अ विलेज नियर बाय. आई reassured myself. More questions resurfaced. How far is the village and where? In which direction? वहां पे कुछ विलेज के निशान, मतलब कुछ उनको महसूस हुआ कि आसपास उस वहां पे जरूर कोई विलेज होगा, लेकिन कौन से डायरेक्शन में होगा, कहाँ पे होगा, ये कुछ भी उनको अभी तक पता नहीं चला था. I climbed one more hillock and tried to locate signs of human civilization. एक और हिलॉक के ऊपर वो चढ़ गए और आसपास कहीं ह्यूमन सिविलाइजेशन का, मानवीय बस्ती का कुछ निशानियां उनको दिखाई देती है क्या, वो ढूंढने की उन्होंने कोशिश की. माई लेग्स वेयर ट्रेम्बलिंग. उनके जो पैर थे वो बहुत ही कांप रहे थे. आई एज आई रीच्ड द टॉप ऑफ द हिल आई जम्प्ड विथ जॉय. जैसे ही वो ऊपर चढ़ गए, उन्होंने एकदम जॉयसली
जंपिंग किया. वाई जॉयसली जंप किया? आई हर्ड द साउंड ऑफ पीपल टॉकिंग इन द लाउड स्पीकर. आसपास कहीं पर ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ये इसके एक सिंबल उनको मिल गया है कि लाउड स्पीकर पे कोई लोग बातें कर रहे थे, वो उनको वहां से सुनाई दिया. इन अ जिफी आई रैन डाउन. जिफी मीन्स क्विकली. इन अ फ्यू सेकेंड आई रैन डाउन, उसके नीचे वो उतर गए. द हिल टूवर्ड्स द साउंड विथ फुल विगर. वहां से हिल से वो नीचे उतर गए और किस डायरेक्शन में? वो साउंड की डायरेक्शन में वो विथ फुल एनर्जी, विथ फुल स्ट्रेंथ. विगर मीन्स एनर्जी, स्ट्रेंथ. वो वहां से जाने लगे, मतलब उस डायरेक्शन में वो जाने लगे. आई स्टम्प्ड एंड फेल डाउन. उसी वक्त वो लड़खड़ा गए और नीचे गिर गए. सॉ ड्रॉपिंग ऑफ ब्लू बुल्स. नील गाय के कुछ ड्रॉपिंग्स, कुछ शीट्स वहां पे उनको दिखाई दिए. और वहां पे वो मतलब उनको रियलाइज हो गया कि आसपास कहीं तो ह्यूमन सिविलाइजेशन है. struggled, stood up and decided with which direction to move on. और तभी वो खड़े हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि कौन से डायरेक्शन में मूव ऑन करना चाहिए. The signs of civilization were visible. The tiny sleepy village of Pizzeri was visible through the green woods. जंगल के दिशा से वो गांव की तरफ जाने लगे और वहां से उनको एक स्लीपी विलेज, पिट्जरी विलेज उनको दिखाई दिया. द लैंटर्न ऑफ राजीराम भलावीज फार्म. अभी ये जो विलेजर्स है उनके नाम वहां पे दिए गए कि कौन से विलेजर्स है, बिकॉज फ्रॉम सो मेनी डेज ही वाज स्टेइंग in that village Pizzeri, and that's why he was well known to all these people. The loudspeaker installed for केशव बल्लव्स मैरिज. केशव भल्लावी जो है उसके मैरिज के कुछ अनाउंसमेंट्स उस लाउड स्पीकर के हो रहे थे. ऑल वेयर इन क्लियर साइट. टर्न लेफ्ट टू स्टॉप द विलेज लेक एंड फैमिलियर हिल लॉक. वहां पे वो जो फैमिलियर हिल लॉक था जिसके ऊपर वो हमेशा जाते थे, उस विलेज के ही एकदम नजदीक होने वाला. कौन सा नाम क्या दिया है ये देखो यहाँ पे, सुईहुद्द. सुईहुद्द के नाम के उस हिल के ऊपर वो हमेशा जाते थे, वो उनको वहां पे दिखाई दिया. द डॉग बार्क टू वेलकम मी टू द विलेज. और डॉग ने जो वेल नोन था उनके लिए, तो उन्होंने उनको बार्किंग करके जैसे वेलकम किया, इसे उनको फील हुआ. द फर्स्ट थिंग आई डिड was to take a bath. The shaking of limbs had lessened a bit. पहले उन्होंने बाथिंग किया, बाथ लिया, और जो भी शेकिंग ऑफ लिम्स था, जो भी उनके लिम्स, उनके अवयव, उनके जो शरीर, पैर वगैरह जो कांप रहे थे वो थोड़े कम हुए. मतलब जो भी वो रेस्टलेस फील कर रहे थे, डर गए थे, अभी उनको रिलैक्स फील हो रहा था. द स्टमक एक स्टार्टेड अगेन. फिर से उनके पेट दर्द में पेट दर्द स्टार्ट हो गया था. ate to the full and then slumped on to the cot. उन्होंने पेट भर के खाना खाया and then slump means fell heavily. जंप करके वो अपने कॉट के ऊपर चढ़ गए या फिर बैठ गए और वहां पे रिलैक्स फील किया. lying awake looking at the stern sky. और वहां पे शांति से आकाश की तरफ, स्काई में जो भी तारे तारे थे उनकी तरफ वो ऑब्जर्व करने लगे, देखने लगे. आई स्पोक टू माई सेल्फ. और खुद से ही उन्होंने एक बात की. क्या बात की? देयर स्टिल एग्जिस्ट अ जंगल वेयर वी कैन गेट लॉस्ट. इजंट दिस आवर गुड लक. उन्होंने फील किया खुद के लिए कि यहाँ पे या फिर इस दुनिया में ऐसा भी जंगल है कि जहाँ पे हम हो सकते हैं. और ये बहुत ही लकी थिंग उनको फील हो रहे थे, बिकॉज ही वॉज अ नेचर लवर पर्सन एंड दैट्स व्हाई ही feel lucky to himself that there is still a jungle in his surrounding. This extract or this
part first was taken from Sakha Nagzira by किरण पुरंदरे. किरण पुरंदरे उन्होंने जो ये सखा नागजीरा बुक लिखा है उसमें से ये फर्स्ट पार्ट लिखा निकाला गया है. ओके student, now this was the first part. In next lecture we will see the second part. Okay, goodbye.